Okay, so once again, I welcome everyone, especially those students who have joined us online. So it's good to see your determination. Those who have come, it's easy. एक बार आने के लिए मुश्किल लगती है, of course, but then once you come, you are there. But when you sit at home, it becomes a little difficult in the sense that you have lot of distractions around you. मम्मी कुछ बोल रही है, टीवी चल रहा है, भाई उधर चिल्ला रहा है, मोहल्ले वाले अलग कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. And when you are at home, it becomes little difficult to pay attention towards the mobile, what the teacher is speaking. So ऑनलाइन करना ज्यादा डिफिकल्ट है. एक बार चल के आना, गाड़ी चला के, पैदल चल के, साइकिल चला के, इज लिटिल इजी. एक ही बार मेहनत करनी है. लेकिन आप अगर जब घर पे बैठ के ऑनलाइन करते हो, यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू पे अटेंशन फॉर द होल आवर, फॉर होल क्लास 1 hour, isn't it? So yeah, it's appreciable. Okay, so more students will join in both online and offline mode with us, and even if no one joins, we are there doing us. Okay, so now yesterday I said that the upper part of the car, which is very important, is there are three parts which I said. There can be more, but I have categorized into three parts. First is vocabulary, that is words. Sometimes it happens that we understand well in Hindi. हमको पता है कि हमको हिंदी में क्या बोलना है. Then we are able to speak it in English also, not an issue. But there is one word in Hindi जो हमको इंग्लिश में जमता ही नहीं है. अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे. ये वर्ड मुझे आ जाए तो मैं पूरा सेंटेंस आराम से बोल लूंगा. But then the problem occurs when that particular word we are unable to recall that what do we speak that word, or how do we speak, or what is a particular English word for that particular thing. So it becomes a problem. Therefore, vocabulary is important. Second is grammar, because without grammar, yesterday I've given one example that I am teaching, I was teaching, and I will be teaching. Now it depends on you. Whatever you speak, if you speak I am teaching, the response of the person who is talking to you will be different. If you say I was speaking, the response of the person will be different. And if you say I will be speaking, I shall be speaking, then the response of the person will be different. So it depends on you. So therefore, grammar is also very important. Without grammar, it will not make any sense. If I say I speaking, what is this I speaking? So कोई मतलब है क्या? No. Therefore, grammar is also very important. And see, grammar is a very big thing. आप लोग ने सुना होगा ना, संस्कृत का जो ग्रामर होता है इसको व्याकरण कहते हैं हिंदी में. व्याकरण, जो व्याकरण होता है वो इतना छोटा नहीं होता है कि व्याकरण के ऊपर मोटी मोटी किताबें होती है. आई थिंक संस्कृत में पाणिनि ने व्याकरण लिखा है ना, व्याकरण. और जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे बड़े बड़े आप एक साल का न्यूज़पेपर का कैसे गठरी बनता है, वैसे ग्रामर की गठरी बनती है. ग्रामर इतना डीप है. बट इन स्पीकिंग वी डोंट रिक्वायर ग्रामर, वी रिक्वायर वेरी बेसिक ग्रामर. एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ग्रामर की, इंग्लिश बोलने के लिए या कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए. या इफ यू वांट टू गो डीप, इफ यू वांट टू स्पीक पॉश इंग्लिश, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो कोई अमेरिका का आदमी बोल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग. उसके लिए आपको थोड़ा ग्रामर डीप में भी पढ़ना पड़ेगा, इवन बोलने के लिए. बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी डिफरेंट एलिट्रेशन और डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच. आपने सुना होगा, हम बोलते समय भी अप्लाई कर सकते हैं. बट फॉर कॉमन पीपल फिगर ऑफ स्पीच डजंट मैटर. जो बोलना है बोल देते हैं, ठीक है. फॉर कॉमन पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डजंट मैटर. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है इंपॉर्टेंट. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टेंसेस. व्हाट टेंसेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल. काल is very important. If you don't have a proper understanding of tenses, you will not be able to speak English. According to me, whatever I have observed, whatever I feel is that tenses are the most important. And along with tenses, modern tense. So modern tense has two parts. One part is of tenses, which has three types: present tense, past tense, and future tense. Another is modern tense. Modern tense and auxiliary verb and all those comes in modern tense. So there are tenses are divided into two parts. I'm talking from speaking point of view. Else grammar is very deep. किताबें भर जाएगी लेकिन आपका ग्रामर खत्म नहीं है. लेकिन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेंसेस. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? अरे पढ़ा है बचपन से, 5th क्लास से 10th क्लास तक. 8. व्हाट आर दे? स्पीक लाउडली. यहाँ तक आवाज आनी चाहिए मोबाइल में. नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन वर्ब. नाउन वर्ब नहीं, एडवर्ब. हाँ, नाउन वर्ब. पी से क्या है? पी से
प्रोनाउन है उधर, इधर एडवर्ब के बाद पीछे preposition, then conjunction, and last is interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. There are 8 parts of speech. Understanding of parts of speech is very necessary in speaking. I'll give one example. Okay. Yes, Devansh, can you confirm me once whether you are getting my voice or not clearly? Okay, very good. So I'll give an example. Okay, why parts of speech is important? Especially in parts of speech, 3 things are very important, ultra important. One is noun, adjective, verb. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा वर्ड क्या है सेंटेंस में वो वैसे यूज होता है. Like you cannot use noun in place of adjective, or you cannot use adjective in place of verb. You cannot use verb in place of adverb. जहां पर जो फिट होता है वही होना चाहिए. एंड देयरफॉर एक वर्ड के अलग अलग फॉर्म होते हैं. कोई एक वर्ड है उसका नाउन फॉर्म भी होता है, एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है, वर्ब फॉर्म भी होता है, एडवर्ब फॉर्म भी होता है. नाउ यू कैन नॉट यूज वन फॉर्म एट द प्लेस ऑफ अदर, एंड इफ यू यूज इट विल लुक वेरी ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मतलब बहुत अजीब लगेगा, और अगर सामने वाले को इंग्लिश आती है तो उसको हंसी आ जाएगी. तो उसका टेंशन नहीं अपने को, अभी अपन तो सीख रहे हैं. तो अभी आप गलत भी बोलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना जरूरी है. But once we learn, therefore it's very important. So according to me, tenses, second is parts of speech, and parts of speech also understanding of the word. ये जो word है ये कौन से part of speech से belong कर रहा है. See, I'm telling you the difference between main grammar and this grammar which we speak. Okay, the simple difference is, a very simple difference is that when it comes in exam, from grammar point of view, it comes एक sentence दिया रहेगा, a sentence will be given to you, and then it will ask that identify different parts of speech or classify different words in different part of speech. तो हम क्या बोलते हैं, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है. ऐसा बचपन में किया होगा स्कूल में. ऐसा कुछ स्पीकिंग में नहीं होता है. स्पीकिंग में बस हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वर्ड क्या है, और उसके हिसाब से हम उस वर्ड को क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं. वन एग्जाम्पल, लाइक आपने सुना ना वर्ड ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, ईमानदारी. करेक्ट, ईमानदारी. ठीक है, तो सच्चाई या ईमानदारी. करेक्ट. अभी अच्छा, ऑनेस्टी ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन. क्या है ऑनेस्टी? प्रोनाउन, क्वालिटी है. क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव है. इनका कहना है प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है. ओके, कैन यू मेक अ सेंटेंस विद ऑनेस्टी? बचपन से ही सुनते आए अपन ना, असेंबली में जाते थे और बोलते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नाउ थिंक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. व्हाट इज दिस? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. 3 ऑप्शन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. प्रोनाउन का ऑप्शन है नाउन. क्यों नाउन? ऐसा क्या जिसके ऊपर फोकस होता है वो नाउन होता है? हाँ, बचपन में हमको स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं कि जिसके ऊपर फोकस हो रहा है सेंटेंस में, जिसके बारे में बात हो रही है, वो नाउन होता है. करेक्ट, ऐसा पढ़ाते हैं स्कूल में. कुछ हद तक सही भी है कि वो नाउन होता है ना. तो उस हिसाब से आपने गेस किया, बट आंसर सही है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअली ऑनेस्टी इज नाउन, बिकॉज ऑनेस्टी, अभी देखो नाउन क्या होता है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ऐसा बच्चों में डेफिनेशन पढ़ते थे. ये तो ना नेम ऑफ पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, बट एक थिंग कह सकते हैं एक प्रकार से. एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं ना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जिसको देख नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते. ईमानदारी को पकड़ सकते हो क्या? नहीं. बट हम, कोई ईमानदार है तो हम पता कर सकते ईमानदार है ना, वो बता रहा है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. लेकिन देखो इसका, ऑनेस्टी का हिंदी क्या होता है? ईमानदार होता है कि ईमानदारी? ईमानदारी. करेक्ट, ईमानदारी होता है ना. ईमानदारी ये एक नाउन है, क्योंकि ईमानदारी मतलब ये एक प्रकार का ट्रेट है. ट्रेट मतलब किसी की क्वालिटी है, और ये क्वालिटी का नाम है. ऑनेस्टी डायरेक्ट एक नाम नहीं है. ऑनेस्टी इज नॉट नेम डायरेक्टली. ऑनेस्टी इज नॉट अ नेम इटसेल्फ डायरेक्टली, बट ऑनेस्टी इज अ ट्रेट विच अ पर्सन पोजेस. एक इंसान के पास ईमानदारी होती है, और उस क्वालिटी के नाम है ईमानदारी. अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, बदमाशी, ईमानदारी, चोरी, चगारी बोलते हैं ना, ऐसे अलग अलग क्वालिटी हो सकती है. ईमानदारी एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम क्या है? ईमानदारी है. ऑनेस्टी, ईमानदारी. और ईमानदार क्या होता है इंग्लिश में? ऑनेस्ट. ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. वो एक ईमानदार व्यक्ति है. तो देखो व्यक्ति है वो कैसा है, तो व्यक्ति को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है.
तो ईमानदार इज एडजेक्टिव, विशेषण है ये, और ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव। इसका मतलब ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन कैसा है, हाउ इज द पर्सन, पर्सन इज ऑनेस्ट, so he is an honest person, correct? This is very important actually. Very important, he is an honest person, वो एक ईमानदार आदमी है। Okay, so therefore this is very important. Now if you say honest is the best policy, जिसको इंग्लिश आती है ना, मैं क्या बोल रहा है यार, जमाने, honest is the best policy is wrong, honesty is the best policy। और आप ऐसा नहीं बोल सकते he is an honesty man, He is honest. he is an honesty man नहीं हो सकता, he is an honest man। ये बोलने में काम आता है। स्कूल में कैसा आता था, ऐसा लिखा रहता था, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, फाइंड द पार्ट्स ऑफ हिज स्पीच। हम बोलते थे ही प्रोनाउन, इज वर्ब, एन आर्टिकल, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, मैन नाउन, कॉमन नाउन। ऐसा करते थे, याद है? इंग्लिश बोलते समय ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? नेवर। बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग दैट ऑनेस्टी इज नाउन एंड ऑनेस्टी इज एडजेक्टिव। देयरफॉर व्हेन यू आर यूजिंग इट, should be able to use it correctly. You should be able to use correctly. Now, see, I could say it, you should be able to use it, you should be able to use it correct और correctly। कौन सा बेटर है, correct और correctly? Correctly better है। Correctly क्योंकि adverb है। You should be able to use it. How use it? Correctly. Correctly is an adverb. Correct also can be an adverb. Correct भी एक adverb हो सकता है। और इस sentence में correct भी सही है, but correctly is better. Okay? Should be able to use it correctly. So when you understand this parts of speech, कौन सा word कौन सा part of speech से belong करता है, it becomes very easy to speak that, to understand that। सामने वाले नहीं बोला तो अपने को पकड़ना आता है, अच्छा ये ऐसा बोला था। अदरवाइज आप इधर उधर करोगे वर्ड्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल? ऐसे जैसे मैंने ऑनेस्ट और ऑनेस्टी दिया, आप कोई एग्जांपल दे सकते? परफेक्ट है, परफेक्टली कौन क्या है? So perfect, what will be perfect? Person is perfect, so what is it in terms of parts of speech? Adjective. He is a perfect person, or he did the word, sorry, he is a perfect person, or he is a perfect gentleman, he is a perfect cricketer। वो क्रिकेटर है, कैसा है? क्रिकेटर को क्या कर रहा है वो? क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, he is a perfect cricketer। So this is adjective, perfect। But when I say perfectly, it's not perfect, perfect गलत pronunciation है, it's perfect, perfect, P-U-F-E-C-T, perfect, perfect नहीं होता है, ठीक है, perfect। So when you say he has completed the work perfectly, उसने काम को पूरा किया। अब ये किया मतलब वर्ब हो गया, कैसा किया? परफेक्टली। कोई अगर ये बोले कि अरे किया को क्वालिफाई कर रहा है, बट किया तो वर्ब है ना, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और अगर किसी चीज को, नाउन को क्वालिफाई करेगा या नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। सो इज अ परफेक्ट पर्सन इज एन एडजेक्टिव। ही कंप्लीटेड द वर्क परफेक्टली, ही डिड द होमवर्क परफेक्टली। व्हाट अ परफेक्ट ड्राइंग। क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव और एडवर्ब। व्हाट अ परफेक्ट ड्राइंग। एडजेक्टिव। ड्राइंग कैसी है? परफेक्ट है। व्हाट अ परफेक्टली ड्राइंग। नो। ओह, हाउ परफेक्टली यू हैव मेड इट। क्या परफेक्शन के साथ बनाया, हाउ परफेक्टली यू हैव मेड इट। तो यहाँ पे देखो, मेड इट, कैसा मेड इट? परफेक्टली। अब यहाँ पे परफेक्ट भी चल जाएगा, हाउ परफेक्ट यू मेड इट, ठीक है, वो उसका सेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, परफेक्टली बेटर। तो ये सेंस डेवलप होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक्चुअली जो पार है इंग्लिश या लैंग्वेज की, इसका ये ऊपर वाला टपरा है, इट इज अ कवरिंग ऑफ द कार। Like if you take car, there are four wheels and you sit on the chair to take your seat in the car and you don't see the above part, it is open। Of course अगर लैम्बोर्गिनी है तो अलग बात है, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल कार है ऊपर से ओपन है, बोलेंगे खटारा कहाँ से आ गई, करेक्ट। तो वैसे ही अगर आपको इंग्लिश आपने बोलना चालू कर दिया आड़ा टेढ़ा, लेकिन उधर ये सब नहीं है, ग्रामर नहीं है, उधर पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंस नहीं है, देन ये वैसे ही हो जाएगा थोड़ा, कि बोल तो रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है, लेकिन उसका ऊपर का कुछ नहीं है, ठीक है। देन कम्स कॉन्फिडेंस। ना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स हाउ विल यू डिफाइन कॉन्फिडेंस?
एबल टू स्पीक क्या, गूंगा गूंगा रहता है उसको, उसका डॉक्टर इलाज करता है, सर्जरी करता है, वो भी बोलने लग जाता है, तो वो एबल टू स्पीक हो जाता है। फ्रंट ऑफ डेवलपर तो एक छोटा सा बच्चा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, उसको मम्मी पापा बोलते हैं, वो बोलने लग जाता है, तो क्या एबल टू स्पीक इंग्लिश में कॉन्फिडेंट डेवलपिंग और पर्सनैलिटी developing? See, when confidence develops, automatically personality gets developed. It automatically develops. That is different thing actually. Okay. Yeah, of course, confidence like personality develops, but you cannot define confidence in that way. When can you say that a person is confident? आप कब कह सकते कि पर्सन कॉन्फिडेंट? आपकी बातों पर जब वो परफेक्ट होगा उस चीज में. ओके, आपकी बातों चालू क्या क्या उनसे सेट करना है so can you speak it in English? नहीं Yes, speak. When someone is able to कर पा रहा है मतलब able. When he is able to speak or when he is able to express his ideas in front of people easily. Confidence. Okay. और कोई confidence? मेरे हिसाब से confidence होना चाहिए. Confidence is a state मतलब एक position है इंसान की. Confidence is a position where the performance never changes depending on the situation outer situation. When can you say a person is confident? You can say a person is confident when his performance doesn't change in the outer environment. मेरी मम्मी बैठी है, मेरे पापा बैठे, मेरा भाई बैठा है, लड़की बैठी है, तो कैसा सोचेंगी, है ना? जब सचिन तेंदुलकर उतरता है तो उसकी वाइफ बैठी है, स्टेडियम में उससे फर्क पड़ता है क्या? उसको इससे फर्क पड़ता है क्या कि आज मैच देखने कौन आया है, आज मोदी बैठ के देख रहा है मैच, आज पाकिस्तान के साथ मैच है, उसको फर्क पड़ता है क्या? उसका परफॉर्मेंस देगा वो, इज कॉन्फिडेंट. लेकिन अरे आज पाकिस्तान के साथ मैच है, प्रेशर में आ गया है, अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कैन यू से दैट ही इज कॉन्फिडेंट? नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम कॉन्फिडेंट. नाउ मोदी कम्स, or Trump comes and he speaks here. Now I become, my confidence goes down and I'm not able to speak. It means I'm not confident. But even if anyone comes, even if no one is there, I'm speaking to myself. I'm speaking alone to myself. But I'm speaking with cool-headed, calm mind. I'm speaking in my own way. There is no difference in performance. I'm confident. But of course, when you practice, confidence develops. Okay. And when confidence develops, automatically personality develops. Automatically everything will follow. Confidence. Like again, coming to example of car. Now you have seat, you have upper cover. Your car is packed nicely, and you got seat. आप जगह पे बैठे, ड्राइवर की सीट पर बैठे. Now you started driving. गाड़ी चालू की. घर चालू हो गई गाड़ी, है ना? खटारी गाड़ी थी इसलिए घर रही. ठीक है, एकदम शॉप चालू नहीं रही गाड़ी. ठीक है, अभी गाड़ी चालू हो गई. नाउ आपका कॉन्फिडेंस, स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी तेज घूम गई तो सामने से ट्रक आ गया तो क्या करूंगा? ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? सीट बेल्ट पहन लेता हूँ यार, ना तो कुछ हो गया तो बच जाऊंगा. अच्छा, एयरबैग काम कर रही कि नहीं, पहले ही डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं. सब कुछ है, कार बढ़िया, लैम्बोर्गिनी एकदम, रोड भी अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है. अरे गया आगे लेके, अगर वो डिवाइडर पे टकरा गई तो गाड़ी चल पाएगी आपसे? सेम चीज, आपको वोकेबलरी भी आ गई, आपका ग्रामर भी सुधर गया, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आया. आप घर पे बोल लेते हो बढ़िया, बाथरूम सिंगर होते हैं ना, बाथरूम में गा लेते हैं. ठीक है, बाथरूम में गा लेते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाके गाना पड़ा तो नहीं गा सकते, कॉन्फिडेंस नहीं. वैसे आप अकेले बोल लेते हो, कुछ सोच लेते हो मन में, बट व्हेन पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट एबल टू स्पीक. टाइप भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते किसी के साथ. क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है. कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट. हाउ विल इट डेवलप? कार में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? प्रैक्टिस. लेकिन पहले दिन आप अकेले चले जाओगे कार लेके, बाजू में कोई रहता है सिखाने वाला, या कोई पापा बैठे रहेंगे, मम्मी बैठेगी, जिसको कार आती है. कोई अनपढ़ को लेके बैठोगे मतलब उनको भी नहीं आती है, मैं भी बैठा है ना, कोई चलेगा, बैठे तो बैठ, मैं चलाता हूँ. ऐसा है क्या? मतलब एक मैं अकेला मरने वाला, तब दोनों साथ में मरेंगे, ऐसा हो जाएगा ना? करेक्ट हो?
ऐसा करेंगे क्या? नहीं। एक जिसको आता है उसको लेके बैठेंगे, वो बोलेगा अरे क्लच दबा यार, 2 नंबर पे डाल दिया, 2 नंबर पे डाल, बैक गियर पे डाल, गाड़ी पीछे चलेंगे, बताएगा वो। कार आ रही है, अभी 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 ओवरटेक मत करना, अभी ओवरटेक मत करना, सामने से रोड पतला है, ऐसा बताएगा वो। अभी खतरा है, अभी कार, अभी ओवरटेक नहीं करना। तो बाजू में सीधे कोई बैठा रहता है, हु नोज हाउ टू ड्राइव, देन ऑटोमेटिकली एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप बस चलाते हो, धीरे धीरे चलाते हो, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40, 50, 60। एक दिन ऐसा आता है कि ना आपको बाजू में किसी की जरूरत है, और ना ही आपको स्पीडोमीटर में देखने की जरूरत है कि कार कितनी स्पीड है, चलने दो, रोड अच्छा है, सब कुछ है, चलाएंगे, सोचना भी नहीं पड़ता है। करेक्ट। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सोचना पड़ता है, कौन सा गियर दबाऊं, क्या करूं। सेम चीज यहाँ पे भी है। आपको शायद आती होगी, सभी लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, क्योंकि सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कोई अनपढ़ आके बैठा नहीं है। करेक्ट। तो आपको पहले से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। बाजू में समझो कि आप चला रहे हो गाड़ी, बाजू वाले ड्राइवर की सीट पे मैं हूँ, आप लोगों को बोलना है और मैं बताऊंगा, ऐसे मत बोलो, वैसे बोलो, वैसे नहीं ऐसे बोलो, यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको सही करो, इसको ऐसा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहा होता है। बताने के लिए कौन है? मैं हूँ। लेकिन अगर आपने कार से उतर गए, बोले नहीं रे भाई आज नहीं जमेगा, तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? जैसे अभी 2 लोगों ने बोल दिया कि, मतलब 2 लोगों ने, उनका ये रीजन नहीं था कि हमसे होगा नहीं, ऑफकोर्स। एक का था मुझे समझ नहीं आया, एक जन का आरटीएमएनयू का एग्जाम चालू हो रहा है अभी, है ना, तो आरटीएमएनयू का पेपर ऐसा बोल रहे थे। तो एक लड़की ने बोला कि आरटीएमएनयू का पेपर चालू है, तो पेपर के बात करूंगी, मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ने बोला समय नहीं जम रहा है, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग पहले ही उतर गए, मैं तो गाड़ी पे ही बैठा हूँ, इधर ही बैठा हूँ, बट वो लोग उतर के गाड़ी से ना हूँ। ऑफकोर्स दे कैन लर्न, यूट्यूब है, कोई और टीचर है, उनके बड़े भाई बहन मम्मी पापा होंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही सिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी वो मेरे से नहीं सीख सकते, क्योंकि वो गाड़ी से उतर गए। तो आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, कितने कम से कम अगले 2 महीना आप ईमानदारी से करोगे ना, यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, बहुत ही भयंकर वाला चेंज देखिए। ठीक है ना? तो बट यू विल हैव टू सिट एंड यू विल हैव टू ड्राइव द कार, you'll have to speak, you'll have to try. Then automatically you will see the change after 2 months. It may take more, but minimum 2 months. मैं तो बोल रहा हूँ मिनिमम 2 मंथ, कम से कम 2 महीने। आप रेगुलर रहने चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जो होमवर्क मिला उसको करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जिसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा बहुत बोला था, आज मैंने डिटेल में बोला है। क्यों? टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप सीरियसनेस टू लर्न दिस। मैं आपको 2 वर्ड बोलूंगा कि आज मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं बोलूंगा कल तक ये याद हो जाना चाहिए। बिकॉज वर्ड्स को हम याद नहीं करते हैं कभी, वर्ड्स को हम समझते हैं, उनको उनको यूज करते हैं, और यूज करते करते दिमाग में बैठ जाते हैं। हम किसी का नाम बैठ के याद करते हैं, इसका नाम गणेश है, गणपति बप्पा है, गणेश है, गणपति बप्पा है, अपन उसको नाम से बुलाते हैं, और गणेश कहाँ है, और गणेश ये है, अपने आप नाम उसका दिमाग में आ जाता है। वर्ड्स ऐसा ही है, आपको वर्ड्स पता, कोई वर्ड पता चला, यू गॉट टू नो वन वर्ड, यूज इट इन डिफरेंट सिनेरियो, यू विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। फिनिश। यूज नहीं किया तो गड़बड़। तो अब अगर आपको वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस नहीं समझा तो आप करोगे नहीं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। ग्रामर का इंपॉर्टेंस नहीं समझा तो आप करोगे नहीं। समझे ना, ऑनेस्टी का एग्जाम्पल दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल होंगे। ठीक है ना? हर एक वर्ड का क्या बोलते हैं, सारे चीजें रहेगी, जैसे कि आर्टिफिशियल, इट इज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब हार वगैरह, इट इज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ज्वेलरी बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी क्यों बोलना है, बोलो इंडिया है। इट इज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ज्वेलरी। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या हो गया? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो ज्वेलरी हो गई, बट आर्टिफिशियल क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आर्टिफिशियल को, ज्वेलरी को क्या कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है, इट इज एन आर्टिफिशियल। इट कुड बी रियल ऑल्सो, बट इट इज आर्टिफिशियल। ये रियल हो सकता था, बट क्या है वो? आर्टिफिशियल है। करेक्ट। तो वो क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई। मैंने बोला आर्टिफिशियलिटी इन लाइफ इज नेवर अप्रिशिएटेड बाय एनीवन। आर्टिफिशियलिटी इन लाइफ, आर्टिफिशियलिटी मतलब दिखावा, नकलीपना कभी कोई सराहता नहीं है, कभी कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा अगर आप नकली जीवन जियोगे तो। आप दिखावा करोगे लेकिन आप हो नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आती बट आप जबरदस्ती उल्टी सीधी बोलोगे तो लोग पसंद करेंगे क्या? आप हिंदी बोलो ना भाई। हाँ, सामने वाले को हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, टूटी फूटी बोलो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आप हिंदी में बोल सकते हो, सामने वाले को हिंदी में बात करना पसंद है, आप जबरदस्ती जाके इंग्लिश झाड़ रहे हो, बोलेगा इसको आती नहीं, इसको से ज्ञान दे रहे हैं। आर्टिफिशियलिटी, नो वन लाइक, नो वन लाइक आर्टिफिशियलिटी। नाउ आर्टिफिशियलिटी इज हियर नाउ, है ना? उसके बाद, व्हाई आर यू स्पीकिंग आर्टिफिशियली?
वाई स्पीकिंग आर्टिफिशियली, तुम दिखावा करके क्यों बोल रहे हो, तुम नकली तना करके क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आर्टिफिशियली, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. And now you cannot say artificially is never appreciated by anyone or no one appreciates artificially, है ना, और no one appreciates artificial. तो आप ये नहीं बोल सकते इट इज एन आर्टिफिशियली ज्वेलरी, आप ये नहीं बोल सकते इट इज एन आर्टिफिशियल, क्या बोला था मैंने, आर्टिफिशियलिटी ज्वेलरी, करेक्ट. आप एक जगह के लिए दूसरे का यूज कर सकते हो क्या, नहीं. और अब आप बोलोगे कि क्या हमको हर एक वर्ड कैसे याद रखना पड़ेगा, नो, नेवर. ये अगर आपको सेंस डेवलप करना है, जस्ट रीड करो. रीडिंग इज द की, रीड करो. न्यूज़पेपर रीड करो. न्यूज़पेपर में कचरा रीड नहीं करना, स्पोर्ट्स पेज, बॉलीवुड पेज, हॉलीवुड पेज और फोकटिया न्यूज, डोंट रीड दैट. यू कैन रीड आर्टिकल्स जिसमें ओपिनियन पेज आता है. किसी भी पेपर में आप देखोगे 90-10 पेज नंबर पे ओपिनियन पेज होता है. उसमें बड़े बड़े ऑथर्स लोग अपने मत को लिखते हैं. दे राइट देयर ओपिनियन ऑन दैट पेज, देन इट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर. वो आप पढ़ो. सिमिलरली यू कैन रीड बुक्स. आप बुक लो, है ना, स्पेशली दोज हु फॉलो कौन, प्रभुपाद हैज रिटन 80 बुक, 80 किताबें लिखी. कितनी, पढ़ते पढ़ते आदमी पतला हो जाएगा. देखो एक श्रीमद् भागवतम लिखा है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है. कितने, 18,000. इफ यू रीड 5 श्लोक डेली और उसका मीनिंग और पर्पस, तात्पर्य, अर्थ और तात्पर्य पढ़ोगे, सिर्फ इतना भी पढ़े 36,000 है. और हर दिन 5 भी पढ़े, 5 पढ़ने को आधा घंटा लगेगा, या ये ज्यादा बड़े पर्पोट है तो 1 घंटा भी लग सकता है. आप डेली 5 पर्पोट भी पढ़ोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो 3600 दिन लगेंगे, मतलब 12 साल. 12 साल नहीं, 10 साल, 365 का हिसाब कितने लगेंगे, 9-10 साल लगेंगे सिर्फ वो कुछ किताबें पढ़ने के लिए. और ऐसी कितनी किताबें, जिंदगी बीत जाएंगी, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन किताबें खत्म. So those who follow ISKCON, those who like spirituality, those who like Sanatana Dharma, they can read Prabhupada's books only. It is sufficient. If you want to learn, you can read his book. It is enough. For other knowledge, you can read newspapers. You can read biographies. Because it gives a lot of understanding about how things are. Okay. You can read biographies. Like I was reading few days back biography of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So he's an American monk. बहुत जबरदस्त बुक है, मजा आ गया. When you read, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. आपकी आर्टिफिशियल कब यूज करना है, आर्टिफिशियलिटी कब यूज करना है, और आर्टिफिशियली कब यूज करना है, ऑनेस्ट कब यूज करना है, ऑनेस्टली कब यूज करना है. आपको अपने आप एक सेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा. यू डोंट नीड टू डू इट आर्टिफिशियली. आपको आर्टिफिशियली रटने की जरूरत है क्या, नो. यू डोंट नीड टू मग अप वर्ड. रटना, मग अप, रटना मतलब मग अप, पानी लिया पी गया, मग में पानी लिया और पी गया, वैसा. यू डोंट नीड टू मग अप, रटना नहीं है. ओके, समझना है. एंड दैट हैपेंस बाय रीडिंग. इफ यू रीड थिंग्स प्रॉपर्ली, ऑटोमेटिकली दिस सेंस विल डेवलप. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. सिंपल. ओके, गेटिंग इट. दिस इज वन थिंग वोकैबुलरी का. ग्रामर में हमको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाके ग्रामर नहीं पढ़ना. हमको स्कूल का एग्जाम देने वाले क्या, हमको सिर्फ बोलना है. बोलने के लिए जितना लगता है उतना पढ़ेंगे. See, if you talk about from grammar point of view, from grammar point of view, then noun के 5 टाइप, pronoun के 8 टाइप, verb के 8-10 टाइप, adverb के भी 6 टाइप, preposition के भी बहुत सारे टाइप, है ना. preposition of time, preposition of place, preposition of action, ऐसे बहुत सारे होते हैं. conjunction के भी टाइप, interjection के भी टाइप. interjection के टाइप नहीं होते हैं, conjunction तक टाइप्स होते हैं. सबके 5-5, 10-10 टाइप है. आप डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के कम से कम 1 महीना लगेगा. वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के 1 महीना. आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे तो हमको वो पढ़ना है क्या, मैं पार्ट ऑफ स्पीच आधे घंटे में फिनिश कर दूंगा. फिनिश आधे घंटे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा. ठीक है. टेंसेस आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो उसको भी 10 दिन लगता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस तो इसके 4 टाइप होते हैं. कौन कौन से, सबसे पहले सिंपल होता है. तीनों में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में सिंपल पास्ट, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर. देन तीनों में होता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस। देन फ्यूचर में भी तीन होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस एंड ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। देन तीनों में परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, past perfect continuous and future perfect continuous. Okay. Now, each tense or each subtype requires 1 day. इसको पढ़ना, उसके एग्जाम्पल, एक्चुअली टेंस को समय देना पड़ता है, तो हम एक दिन में 2 पढ़ेंगे, 12 6 दिन में हो जाएंगे। टेंस हो गया 6 दिन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और थोड़ा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप रियल में जाओगे तो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, टाइप, उनको डिटेल में पढ़ने का तो काफी समय लगता है, बट हम उसको भी आधे घंटे में फिनिश करेंगे। बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, या असर्टिव है, या ऑब्जेक्टिव है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको बैठ के रखना, इसका कोई एग्जाम देना नहीं है। ओके, सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उसमें कहीं कहीं जहाँ जहाँ टाइप की जरूरत है वो भी बताऊंगा मैं, जो हमको लगता है नॉर्मली। ओके, उसके बाद टेंसेस, एक हफ्ता समझिए, चलो 6 दिन, एक हफ्ता, ठीक है। उसके बाद वॉइस थोड़ा बहुत लगता है हमको, जब हम रीडिंग करेंगे ना तो वॉइस उसमें काफी यूज होता है, तो वॉइस भी पढ़ेंगे, बट अगर आपको टेंसेस जम गए तो वॉइस बच्चों का खेल है। एक है मॉडर्न टेंस, मॉडर्न टेंस को भी एक हफ्ता लगता है, तो दो हफ्ते का तो टेंसेस ही हो गए, नॉर्मल टेंस, मॉडर्न टेंस, और उसके बाद एक हफ्ते में बाकी ग्रामर, ऐसे 3 हफ्ते में ग्रामर फिनिश। बेकार से बेकार कंडीशन में 4 हफ्ते, मतलब 1 महीने में ग्रामर फिनिश। और ऐसा कुछ नहीं कि आप ग्रामर पढ़ेंगे तो बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, अगर स्पीकिंग विल गो ऑन रेगुलरली, but speaking will go on regularly. Okay, it will go on continuously. The only thing is, in between, we will read, we will study little grammar also. And therefore, you need to make one copy. You need to make one copy. In that, you'll have to write the thing. And you don't need to write it in class. मैं खुद उसको लिखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं ग्रुप पर भेजूंगा, उसको आपको कॉपी में कंप्लीट करके आना रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा वो मैं समय तो बताऊंगा। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, वैसे आपको और सेंटेंसेस बना के लाने पड़ेंगे घर पे, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मैंने आज लाइक कम बच्चे आए थे, इसलिए मैंने ये भी आज का क्लास भी एक प्रकार का इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, ओवरव्यू हो गया, है ना। कल से एक बच्चा भी आके बैठा तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस कल चालू कर देंगे, कल हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, और परसों से क्या चालू कर देंगे, टेंसेस। एंड एवरी डे वी विल हैव स्पीकिंग टास्क, एवरी डे वी विल हैव speaking task. One topic will be given to you and you'll have to speak. And yesterday I told you, because you both are new, therefore I'm telling. Of course, I have, like, this session is getting recorded, it is being recorded. Okay, मैं इसको record कर रहा हूँ, I'm recording it, and I will upload it on YouTube. And I'll send you the link. So today you have attended the class already. You don't need. I'll send the link, and you can watch that video. 1 hour 10 minutes. It is 70 minutes. You can watch it at 2x, 1.5x. But if you watch it, you'll get an overall idea that what we have discussed yesterday. Okay, so you can understand by that thing. So make sure you do that. I'll send it to you after the class. Okay, another thing for others, that I'll give you homework today, and in WhatsApp group we'll get it. Okay, and of course the task will be speaking one. What? Speaking one, बोलने का task रहेगा सर। मैं एक topic दूंगा जिसका आपको बोलना है। I'll just tell you the topic now only. The topic is, how do you spend your day? Yesterday everyone has spoken on about their introduction, about themselves. Who are they? What is their name? अपना इंट्रोडक्शन नॉर्मल बेसिक, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सारी चीजें सबने बोला कलेक्टिव। आप लोग वो देखोगे, रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको मिल जाएगा। टुमारो अवर टॉपिक विल बी, हाउ डू आई स्पेंड माई डे। आई मतलब मैं खुद, आपको दूसरे के बारे में बताना है क्या, अपने बारे में बताना। हाउ डू आई स्पेंड माई डे, मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही है, जो भी है, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। Like after getting up early in the morning, at whatever time you wake up, you can tell the time also, that I wake up at 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. Then what do you do? How does your day how do you pass your day? You can share with us, okay, and even you can share other things if you want, okay, whatever you do in your daily routine. So that will be the topic. Understood? Now,
Yesterday I told this point already. Now I'm repeating that how to prepare for it. How to prepare for it. So prepare कैसे करना है? हर बच्चे का अपना अपना लेवल है. किसी का लेवल है कि वो हिंदी में सोच रहा है, मतलब मन में बस डायरेक्टली इंग्लिश बोल ले रहा है वो, थोड़ी बहुत ग्रामर नहीं आती उसको, बट डायरेक्टली बोल रहा है वो. इट्स ओके. सेकंड हो सकता है लेवल कि वो मन में हिंदी में सोच रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं फिर ब्रश करता हूँ, देन आई डू ब्रश, आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ, फिर मेरी मम्मी जब मेरे को बुलाती है तो मैं नाश्ता करता हूँ, देन व्हेन माय मदर कॉल्स मी आई टेक ब्रेकफास्ट. ऐसा मैं हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोल रहा हूँ. दूसरा, मैं सोच के नहीं बोल पाता है या मुझे बहुत समय लगता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ. पहले आप हिंदी में लिखो और फिर उसको ट्रांसलेट करो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. आप किसी भी लेवल पे रहो, आप इंग्लिश में पहले लिखो, क्योंकि अगर आपका लेवल होता है कि आप डायरेक्टली बोल पा रहे हो अच्छे से, तो आप आते क्या ट्यूशन लगाते हैं, क्लास लगाते हैं, नहीं लगाते, मतलब आपको सीखना है. आपका कोई भी लेवल आप कॉपी में लिखो, अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में लिखो, डायरेक्टली इंग्लिश में लिखो, अदरवाइज हिंदी में लिखो एंड देन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. डोंट यूज गूगल फॉर ट्रांसलेशन. अपने मर्जी से ट्रांसलेट करो. गूगल यूज करने की जरूरत नहीं है. यूजर डाला मैं ब्रश करता हूँ, तो गूगल ने बताया आई डू ब्रश, आई ब्रश माई टीथ. ये करने की जरूरत, आपको जो आती है टूटी फूटी खराब अच्छी, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो. आप डायरेक्टली इंग्लिश में लिख पा रहे हो, गुड एंड वेल, गुड. नहीं लिख पा रहे हो, राइट इट इन हिंदी, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. ओके, एंड देन रीड इट अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस इट. गलत बोलोगे चलेगा, गलत प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम. रीड इट, प्रैक्टिस करो, आईने में खड़े होकर बोलने. आईने में खड़े होने से क्या होता है, फियर खत्म हो जाता है. डर जो रहता है ना अपने को, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, मैं अच्छा तो दिखूंगा ना, ऐसे तो मैं हीरो दिखता हूँ लेकिन बोलते समय दिखता हूँ कि नहीं, तो जो डर रहता है ना, ये खत्म हो जाता है. आईने के सामने प्रैक्टिस करो. अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. प्रैक्टिस इट, मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट. डोंट कम इन द क्लास विदाउट प्रैक्टिसिंग. आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे. आप 1 घंटा दे रहे हो, पैसा वसूल करो, वसूल हो जाना चाहिए. पैसा वसूल नहीं तो समय तो वसूल कर लो. समय लगे रहो ना. समय कितना कीमती. चाणक्य पंडित से यू कैन यू कैन अर्न whole wealth of world again, but you cannot bring that one moment back which has passed. Okay, so Chanakya Pandit is a big philosopher, politician, है ना. और बहुत जितना बोलो उतना कम है. He was a prime minister in prime minister in Chandragupta Empire, है ना? Gupta Empire. So जैसे अभी मोदी है, इज अ बिग मैन, उन्होंने कहा था. बहुत इंपॉर्टेंट. आप 1 घंटा दे रहे हो, इतने दूर से आ रहे हो, तो पैसा वसूल होना चाहिए, बट उसके लिए फिर आपको घर से भी आधा पौन घंटा देना पड़ेगा. ये 1 घंटा अगर आपको वसूलना है, उधर आप आधा घंटा दोगे ना, तो जब मैं ग्रामर आपको सिखाऊंगा ना, आपको खुद ही दिखेगा, अरे मैं ऐसी गलती करता था, ओ आज से गलती नहीं करता. पर जब आपको ये पता ही नहीं कि आप गलती क्या करते थे, तब सीखोगे नहीं जल्दी. मुश्किल हो. गलतियां करो, गलतियां करने में प्रॉब्लम, सीखोगे जल्दी आप. ठीक है, तो मेक श्योर यू डू इट. आई जस्ट पोस्ट दिस टॉपिक इन ग्रुप ऑल्सो. You can see there, as I said, write it, read it, practice it, and then come on tomorrow. Everyone will have to speak. कल बोलना पड़ेगा सर इन इंग्लिश. एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर 2 मिनट. कम से कम समय लगा के 2 मिनट, मतलब 2 मिनट बोलने के लिए आपको कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा. 2 पेज तक आपको मेरे शेड्यूल के बारे में लिखना है क्या, आपको अपने शेड्यूल के बारे में लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि आप क्या करते हो. करेक्ट. तो 2 मिनट तो आप लिखी, 2 पेज तो लिख ही सकते हो, और पूरा लिखो. छोटी से छोटी बात लिखो, बट 2 पेज भरना चाहिए, ताकि 2 मिनट तो चले. और उसको प्रैक्टिस करो. आप देखोगे, आप 2 मिनट प्रिपेयर करो तो आप 30-40 सेकंड बोल पाओगे. पूरा दिमाग से निकल जाता. ठीक है. आर यू रेडी? ऑन टुमारो फर्स्ट एज 7:30 विल स्टार्ट द क्लास. 1 बज के आएगा तो भी. ओके. एंड फर्स्ट विल स्टडी सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है, एंड देन वी विल टेक दिस क्लास.
क्लियर है? या कुछ लोगों का हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, कुछ लोगों का एंडिंग में। जब आपको ऐसे प्रिपेयर करके आना चाहिए, जैसे मैंने बोला कौन बोलेगा, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि मैं किसको मौका दूं। ऐसा नहीं कि सब मैं नहीं बोलता, पहले मैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, फिर मुझे सोचना चाहिए कि मैं किसको मौका दूं आज, ऐसा होना चाहिए। बट वो सब होगा जब आप प्रैक्टिस करके आओगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि मैं बोल सकता हूँ, तभी आप हाथ खड़ा कर पाओगे ना। तो सभी प्रैक्टिस करके आओ, एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप सबसे पहले हाथ खड़ा करो, मैं बोलूंगा, फिर मैं सोचूंगा किसको दूं आज मौका, किसको दूं आज मौका, फिर मैं चूज करूंगा किसको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है सब हाथ खड़े करें, मैं बोल रहा हूँ अरे तुम बोलो ना, अरे तुम बोलो, अरे प्लीज बोलो ना, आज तुम बोल दो कल उसको बोलूंगा, ऐसा मेरे साथ नहीं होना। उसके लिए आपको क्या करके आनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस टू थिंग्स रिमेंबर, प्रैक्टिस इट, और कल जब भी जैसे ही मौका मिलेगा तो आप फर्स्ट नीचे बोलने के लिए रेडी होने के लिए। क्लियर है? ओके देन वी शैल एंड द क्लास। Okay, online students, if you have any doubt, if you want to ask anything, if you want to share anything, you can share. Devansh, Sanchita. Okay, fine, no issues. So we shall end the meeting for today. On tomorrow, we shall continue with sentence and speaking tasks. How do you spend, or how do I spend my day? How do you spend your day? Clear? Hai? Okay, fine. So I shall end the meeting. Thank you.